Good evening. I invite Mrs. Kavita Sharma. She is Assistant Nursing Superintendent at Mahatma Gandhi Hospital and Medical College, Jaipur. Good evening, all respective person. Especially thanks to Dr. Hemant sir and Lalit Mohan sir for giving me opportunity on behalf of this present. My topic is the role of oncology nursing and palliative care and end of life care. Next. Definition as a WHO, as per definition, improve the quality of life patient with the life-threatening illness and suffering from many means early identification, impeccable assessment, treatment, problem, physical and psychological spiritual. Next, sir. Next slide, sir. Ma'am, actually, you are sharing your screen. Okay. Yeah. Okay, ma'am. Okay, thank you. The palliative care is help to manage suffering of patient and provide care for at the end of lives and of their families. This data show that the number of patients who need palliative care now before the showing 20 years and coming 20 years. In coming future, more and more patients will be need palliative care support. And this data is annual death in globally. It can be estimated that approximately 60% of the dying patient need palliative care. Palliative care can be divided into three parts: palliative care, end of life care, and terminal care. In palliative care, life limiting illness, symptomatic management, psychological support, and end of life care is the condition of non-curative home support and spiritual health care and physical support. Terminal case in symptomatic management, spiritual care, and days of hours of life. In palliative care, can including this is a palliative care is not for cancer. It is useful regards to disease other than cancer, just like CKD and HIV, chronic heart disease, progressive neurological disorders, etc. Involving models show the purpose is model palliative care intent to this maximum comfort provide the patient and family person. बिकॉज जब पेशेंट को मालूम पड़ता है कि उसे कैंसर है, उसको एक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसका पैलिएटिव केयर में डेथ हो जाती है, लेकिन क्योर एंड प्रोलॉन्ग के अंदर पेशेंट में ये दिक्कत आती है कि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, पेशेंट खुद हताश हो जाता है, पेशेंट की डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को स्पिरिचुअल सपोर्ट करना पड़ता है. The aim of palliative care. The aim is to relate to patient symptoms, improve quality of living, threatening illness, physical, psychological, social, and spiritual support, and balance of mind. Principle of the palliative care is we respect to like and dislike, integrate psychological, spiritual, social aspect. We should be patient centered rather than disease focused. And we want to life today is we want to stay add the life today and not day to life. It we need to support entire family, the help them get good health care. Palliative care program included, many programs are included in our India and our out of India because the purpose for manage life and cope of the loss
and grieved patient and family members. पैलेटिव केयर, हाउ टू डिलीवर, पेशेंट को हम अच्छी केयर दे सकते हैं, उसके साथ फैमिली सपोर्ट के उनके फैमिली वालों को एजुकेशन कर सकते हैं, कोप ऑफ दिस लॉस एंड ग्रीफ ड्यूरिंग इलनेस के बारे में उनको बता सकते हैं. फिजिकली स्टेजेस ऑफ लाइफ है, इट मे बी प्रेडिक्टेबल और नॉट अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती है. इट मीन्स कि पेशेंट को हमें कैसे उसको एंटायर उसको समझाना है कि ये क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है, आपको आगे तक जाना है, लाइफ का एंड नहीं है, एंड है तो पीसफुल एंड होना चाहिए. फिलोसफी में हम ये कह सकते हैं पेशेंट को कि अवर इन्वॉल्व टू प्रोवाइड बेस्ट होप, फीलिंग्स, कॉन्फिडेंस, डिग्निटी और अप्रोच कर सकते हैं उसको. लाइफ लिमिटिंग इलनेस को उनको समझा सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं उनको, स्पिरिचुअल के अंदर हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे एक नर्सेस बेटर कर सकती है पेशेंट के लिए. एंड ऑफ लाइफ केयर में व्हाट इज एंड ऑफ लाइफ केयर, फाइनल स्टेज है. लेट मी नो कि नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एंड ऑफ लाइफ केयर. इट इज फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ. इट मे बी प्रेडिक्टेबल or this may be not predictable. We provide it's maybe last month, last moments, last few months, few days, or few weeks and few months. We provide physical and again psychological, spiritual care of the patient and family members. Our goal in nursing prevent for suffering of the patient whom the cancer. जो पेशेंट कैंसर से सफर कर रहे हैं उनको उनके लिए प्रिवेंशन करना, उनके प्रोवाइड कंफर्ट, उनको सपोर्ट करना, मेंटेन उनकी डिग्निटी को, उनकी बातों को सुनना, उनके लिए विशेष करना, उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि वो जो उनका टाइम पीरियड है वो बहुत पीसफुली निकालें, फियरलेस निकालें और बिना किसी डर के वो अपने ट्रीटमेंट के साथ सपोर्ट करें, फैमिली मेम्बर्स को उनको सपोर्ट करने को मिले और उनकी डिजायर को ध्यान में रखते हुए इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफ और पेशेंट फैमिली मेंबर्स को हम इनकरेज करें कि आपको ये सब बहुत ही शांति और धैर्य के साथ इसको एडमिट करना है. मिथ्स हैं पैलेटिव केयर के बारे में, बहुत सारे मिथ्स हैं, अनकाउंटेबल मिथ्स हैं, लेकिन इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि पैलेटिव केयर अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास इंडिया में. बहुत सी जगह पर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते पेशेंटों को, उनको पैलेटिव के एक्सपर्ट नहीं मिल पाते जो उन्हें राय दे सके, पैलेटिव हेल्थ वर्कर अच्छे नहीं मिल पाते जिसकी वजह से वो पेशेंट ट्रीटमेंट के बिना महरूम रह जाते हैं, अप्रोचेबल नहीं होते पेशेंट्स कि वहां तक पहुंच सकें या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके. इसके लिए हमें मतलब ये मिथ्स हैं जिनको हमें हटाना है, लोगों को समझाना है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ट्रीटमेंट आपके पास पहुंच सकता है, नर्सेज आपको मिल सकती हैं. अगर वो पेशेंट की केयर में खुद नहीं आ सकता तो हम घर तक जा सकते हैं पेशेंट के नर्सेज केयर के लिए. एंड एज अ नर्स डायग्नोसिस अगर पेशेंट को हम करते हैं, पेशेंट हमें कंप्लेन करता है कि मुझे पेन है, तो हम उसे कैसे असिस्ट करेंगे, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, उसको एंजाइटी रिलीफ कर सकते हैं. अगर वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे आइसोलेशन चाहिए तो पेशेंट को हम समझा सकते हैं कि आपको सोना चाहिए, अच्छी तरह से पीसफुल रहना चाहिए. इम्पेयर्ड कंफर्ट के अंदर हम पेशेंट्स को कह सकते हैं कि मतलब वो अपना पीसफुल पोजीशन चेंज करके सो जाए, हेड एलिवेट कर ले. उसके बाद भी कई बार पेशेंट इन सब चीजों के बाद भी पेशेंट सोशल विथड्रॉल करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें मतलब नहीं, किसी से नहीं बात करनी, किसी के साथ नहीं रहना, तो उनको अपनी बात से समझाना, उनसे सॉफ्ट मीठी बात करके उनको जेंटल टच दे के समझाना है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे. सेम थिंग इज द डिजायर, उनके पेशेंट्स की क्या बॉडी कैसी है, इलनेस है, वो कैसे अच्छे हो सकते हैं, पेशेंट और पेशेंट की फैमिली, उनको सबको मिलके समझाना होता है कि आप किस तरह से अपने पेशेंट को बेटर केयर दे सकते हैं, कैसे उनकी डेली रूटीन लाइफ को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पीसफुल माइंड कर सकते हैं, भगवान का ध्यान, योगा वगैरह आदि चीज बता के उनको मतलब मेंटली उनको प्रिपेयर करना है इस चीज के लिए कि आपको ये सब करते हैं तो आपको इन सब का बेनिफिट्स मिलेगा.
दिस पिक्चर इज शो कि मतलब इसमें पेशेंट को जैसे उसे फाइंड आउट हुआ कि उसे बहुत कैंसर हो गया है, तो वो बहुत गुस्सा होता है, नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। वो बहुत नाराज होता है, मतलब डिनाई करता है, इनकार करता है कि मेरे को ऐसा नहीं हो सकता, और वो अपने परिवार वालों पे, अपने साथ वालों पे गुस्सा करने चालू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे उसके मन को समझ आती है, जब वो ट्रीटमेंट में जाता है, लोग डॉक्टर से मिलता है, बात करता है, नर्सेस के साथ रहता है, वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो वो इस चीज को स्वीकार करता है। फिर वो अपने आप से सौदेबाजी करता है, क्या मैं ट्रीटमेंट करवाऊं, क्या मेरे साथ ऐसा होगा, क्या मैं जी जाऊंगा, क्या मैं मर जाऊंगा। इस तरह की बातें उसके दिमाग में चलती रहती है, और वो इसके चलते वो डिप्रेशन में चला जाता है। लास्ट में फिर पेशेंट इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे ये बीमारी है और मुझे अपना इलाज कराना है और अपनी लाइफ को बेटर करना है, पीसफुल डेथ को पाना है, ना कि मुझे तड़पते हुए मरना है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एज अ नर्स, हमको उसका जो बात करके देखना है कि वो किस फेज में है, वेदर देन सोशल विड्रॉल है में है, पेशेंट अकेला फील करता है, उसको फियर है, एंजाइटी है, ग्रीविंग एंड सैरो है, या उसकी भगवान से नाराजगी या अपनों से नाराजगी है, या वो बिल्कुल नहीं जीना चाहता। इन सब चीजों को हमें पेशेंट से बात करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके कंफ्यूजन्स को मिटाना पड़ेगा, उसके दर्द को कम करना पड़ेगा, बेटर ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं उसके सोने के लिए, उससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें पेशेंट से बात करने के बाद उसको सब चीजें प्रोवाइड कराएंगे, तो मे बी पेशेंट का इंटरेस्ट अपनी लाइफ में बढ़ता है, और वो उस चीज से कंफर्ट जोन से पेन के कैंसर के जो टेंशन है और वो पैलिएटिव केयर को अपने आप एडेप्ट कर लेता है। As a nurse's responsibility, there is a multiple responsibility on nurses gain, because she need create to a bond, again trust, and she sensitive to them. We get understand to the family wishes and the life care, learning under family wishes, यूजिंग कम्युनिकेशन, उनसे बात करने का, इम्प्लीमेंट करने का तरीका, उनको समझाने का तरीका कि लाइफ को हम कैसे इजी और स्मूथ कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, इंटीग्रेट सोर्सेज उनको बता सकते हैं हम अपने, और उनकी थॉट्स को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं बात करके कि ये ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारे को बेटर थिंग रहेगा। और दूसरा, पेशेंट को फिजिकली मेंटली जो उसकी कंडीशन है उसको ओपन, उसके क्वेश्चन से उनसे बात करके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनकी नॉलेज को बताना, नॉलेज के बारे में उनको बताना कि हाँ आप इस चीज को जान सकते हैं, अपने डिसीजंस ले सकते हैं, और थेरापेटिक रिलेशनशिप बता सकते हैं अपन, अवेलेबिलिटी क्लाइंट्स ऑफ चूज नॉट टू बी ओपन, इस कन्वे कर सकते हैं हम इसको कि आप किस तरह से अपने पैलिएटिव केयर में आते हैं तो आपके पेशेंट्स को कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, कितनी अच्छी केयर मिल सकती है टिल डेथ तक। बैरियर इन पैलिएटिव केयर, मैनी बैरियर्स इन पैलिएटिव केयर इन इंडिया। एक तो इलिटरेसी है, यहाँ पर इग्नोरेंस है, वहाँ पे लोग बाग सुनना भी नहीं चाहते इस बारे में कि हमें कैंसर हो गया है तो उसका हम इलाज करा सकते हैं। कॉपरेट नहीं करते स्टेजेस ऑफ कैंसर के बारे में जानने के बाद। गाँव में तो इतना है कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसको छुपा लिया जाता है, बताते नहीं है, जब वो बिल्कुल एडवांस स्टेज में आता है तब जाके वो आते हैं, तो यहाँ पे भी हमको बैरियर होता है, हम पेशेंट केयर नहीं कर सकते। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है इंडिया में बहुत ज्यादा, लोग बाग पैसों के अभाव को के चक्कर में ट्रीटमेंट नहीं पाते, कई लोग पैसा लगा के भी ट्रीटमेंट पूरा नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास सोर्सेज अच्छे नहीं है, ट्रेवल्स नहीं कर पाते, दूर दूर गाँवों में रहते हैं जो यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, शहरों तक नहीं पहुंच पाते, अच्छे डॉक्टर से नहीं मिल पाते, और कुछ इश्यूज आते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स नहीं मिल पाते उनको, जिसके बारे में ड्रग का मालूमात ही नहीं कि ऐसा भी कोई दर्द है कि जिससे हम अपनी पेन रिलीफ लाइफ को जी सकते हैं। और हेल्थ वर्क की इनएडुकेट ट्रेनिंग है, उन हेल्थ वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, नर्सेस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैंने मेरे इन कैरियर में मैंने ये देखा है कि नर्सेस भी इस ऑन्कोलॉजी में आना नहीं चाहती, उनको एक डर है, फियर है, एंजाइटी कि अगर हम कैंसर फील्ड में जाएंगे तो हमें भी कैंसर हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, हमारे घर वाले हमें इनकार करते हैं। मेरे खुद के हॉस्पिटल में मेरे को कई स्टाफ ऐसा कहता है कि हम कैंसर यूनिट में काम नहीं करना चाहते क्योंकि अदर यूनिट ज्यादा इजी है काम करने के लिए, और इन्वेस्टिगेशंस भी इसमें बहुत हायर होते हैं, इन चक्करों में लोग बहुत डर जाते हैं कि साहब बहुत महंगा इलाज हम कैसे कराएंगे,
इससे अच्छा तो मर जाना बेटर है। ये सब चीजें हमारे इस पैलेटिव केयर के लिए बहुत ज्यादा बैरियर हैं। एंड साइकोलॉजिकल इंटरपर्सनल स्पिरिचुअल additional responsibility है nurses knowledge to screen manage our other distressing symptoms of the patient कर पाते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि नर्सेज को नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा वो पेशेंट्स की केयर बेटर कर सकेंगे, अच्छे हेल्थ वर्कर अच्छा काम कर सकेंगे, पेशेंट केयर अच्छी दे सकेंगे। एडवांस केयर प्लानिंग काउंसलिंग के अंदर एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में हम उनको बता सकते हैं, एडवांस पर्सन्स बेनिफिट्स बता सकते हैं, वैल्यूज बता सकते हैं उनको पेशेंट्स के बारे में। एंड जो पेशेंट्स कर नहीं सकते उसको हम प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की तरह से उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपन। Nursing care including are not disease management, recognize the patient. Sir, I can see my full screen. I can't able to full screen my. Ma'am, your slides are visible. Just click on the slides. No, ma'am, back there. Yes, ma'am, your slides are moving. Listen. एडवांस केयर एंड प्लानिंग के अंदर काउंसलिंग कर सकते हैं हम पेशेंट को कि बेटर से बेटर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अंदर एडवांस पर्सन एबल टू हिमसेल्फ कि भाई कितना हमें बेटर मिल सकता है इसको पेशेंट ट्रीटमेंट के बारे में, पैलेटिव लाइफ केयर के बारे के अंदर हम उनको अच्छे से बता सकते हैं। फैमिली मेंबर्स को हम नर्सिंग केयर के में इंक्लूडेड नॉट ओनली डिजीज मैनेजमेंट बट आल्सो अटेंशन द फिजिकल कंफर्ट, recognize the patient well-being, also comprehensive physical, psychological. Nurses should be have knowledge to manage pain and distressing symptoms of the patients. In our hospital, I am working the Mahatma Gandhi Hospital. It's a 1400 bed hospital college, and palliative care is a part of oncology team. And per month, our have load is 250 to 200 to 50 patients. एंड पैलेटिव केयर इज नीड 24 आवर्स हमारे हॉस्पिटल में है। इसमें कभी भी 24 घंटे में ऐसा नहीं कि पेशेंट अगर कभी आधी रात को भी आया तो हम उसको पैलेटिव केयर का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग होती है, बाकायदा पेन मैनेजमेंट किया जाता है। और इसमें ओपीडीज हमारे पास है जो 9 to 5 खुलती हैं। उसके बाद डॉक्टर्स रहते हैं जो 24 आवर्स में कभी पेशेंट आए उसको पैलेटिव केयर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। और एक टेली कंसल्टेशन है, अगर पेशेंट नहीं आ सकते जो लोग उनको घर पे टेली मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट बताया जाता है। कोलोरिस करके सर्विसेज है हमारे हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल अपनी तरफ से पूरा प्रोवाइड करता है, हर चीज उनको मेडिकल सर्विसेज ले लीजिए आप, उनको मशीनरी इक्विपमेंट ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, नर्सिंग स्टाफ ले लीजिए, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड अवर हॉस्पिटल एंड पैलेटिव केयर। दिस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पॉलिटिक्स का मेडिकेयर का, ये हॉस्पिटल की तरफ से इतनी ही सेवाएं पेशेंट्स को दी जाती है ताकि पेशेंट को, जो पेशेंट नहीं आ सकते, जिन पेशेंट जो एबल नहीं आना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारा घर में ट्रीटमेंट हो, तो उनको हम पॉलिटिक्स के माध्यम से बेटर केयर देते हैं, नर्सिंग स्टाफ को देते हैं, वहाँ पे उनको सब चीज उपकरण वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। इवन एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करी जाती है अगर वो कुछ टाइम के लिए अगर आप अपने आप को आके दिखाना चाहें तो। And at the end, I would like to say that palliative care is very important component to cancer. It can be delivered either the hospital, home, or community. And nurses should be promote palliative care for the patient who not be cured. And barrier can be decreased when advanced disease our patient can give, and we can give guide. Physician to provide for palliative care. Caregiving has palliative care is most important for our patients or mostly cancer patients. Thank you for attention. Thank you very much, Kavita, for your nice presentation. And
your job is very difficult to the difficult patients and their relatives. I congratulate you for excellent presentation. Thank you very much. Thank you, sir. So, Kavita, I will add something and I will comment on this. The palliative care is the most important in our patients because most of our patients ultimately go for a palliative care. Right, And sir. unfortunately, this is not very much developed in country in India. Earlier, Yes, we sir. were thinking that the joint family system was the good. I belongs to a small village. When once anyone gets sick, then everybody used to help them out. Now that the things are changing very fastly, nuclear families, so it's very difficult. So dedicated nurses are the most important pillar of the palliative care, and they can understand things very fastly. Dedicated in services done by the heart. And Right, sir. I can give one example. We had two nurses from the Jeev Daya Foundation at our medical oncology department, and both were the male nurses. And I have selected on the ground that the people had a serving attitude. The both boys has been trained in a nice way in the best of the centers of the country, and they worked with me 5 years, and it was so dedicated and impressive. So I can see, I can tell them it is one of the best example in the country. And fortunately, because of their services, they got the 30% extra marks in the government job, and they got a job in a government, and still they are doing good job. And another thing, they have trained in all things. So now even as a nurse, if they practice for to earn money, they can also earn money. And if you want, they want to serve the people, they can serve the things. So I think this is the important thing of the oncology. Thank you so much, Professor you, sir. Bhatti sir, Dr. R.K. Tamar sir, and my colleague Kavita Sharma for taking excellent talk about the palliative care.